Greeting viewers. Today we venture into the realm of propafenol literature, where science meets storytelling. Join us as we explore the narrative behind this drug, its impact on patient care, its therapeutic potentials, and many more. This video is made and presented to you by Abidur Rahman, Talha Inayat, Khurram Javed, and Muhammad Hamad under the supervision of Professor Dr. Ghulam Jalani. Without wasting any time, we will now formally commence our presentation, starting with the history of propafenol. It is said that the mid-18th century French physician Jean-Baptiste Desaigny was the first to document an anti-arrhythmic effect of the bark of cinchona plant. Almost exactly a century ago, when Quebec encountered a patient with atrial fibrillation who reported he could abort his attack by using quinine extracted from cinchona plants. The first few decades of the 20th century saw the introduction of other anti-arrhythmic agents. These include lidocaine, which because of near complete fast-pass metabolism can only be used intravenously, and procainamide and discopamide drugs like quinidine can be anti-arrhythmic but are poorly tolerated because of high incidence of proarrhythmia and other adverse effects. The 1970s saw the recognition that frequent ventricular ectopic beats, particularly in patients with non-structural heart diseases such as myocardial scarring, constitute a risk factor for sudden cardiac death, and therefore an interest in suppressing these ectopics, new anti-arrhythmic drugs that were better tolerated than available drugs became available, and virtually all share the property that they inhibit cardiac sodium currents. Mexiletine is one such congener that continues to be used, while others such as tocanides have been withdrawn because of the risk for non-cardiovascular toxicities. Another group of sodium channel blockers that became available for clinical use. In the late 1970s, the first two members of class 1C subgroup introduced into clinical investigation and subsequently marketed are encinides and flexinides, subclassifying drugs. The first attempt at such a classification divided sodium channel blocking drugs into those that prolong cardiac action potentials like quinidine and procainamide, and those that have little effect on action potential or in fact shorten them slightly like lidocaine and conjugers. Later, the now widely used terminologies of class 1A for quinidine and disopramide, class 1B for lidocaine and mexiletine, and class 1C for incinidine and flecinidine and propafenol. History of propafenol. Propafenol was first synthesized in 1960s by researchers at Farmitalia Carlo Iba in Italy. In the 1970s and 1980s, clinical trials were conducted to assess its efficacy and safety in treating various cardiac arrhythmias. In 1989, propafenol received approval for medical use in the United States under the brand name Ritmol. Since then, it has been widely prescribed by healthcare professionals for management of different types of cardiac arrhythmias. Propafenol is a medication primarily used to treat certain types of irregular heartbeats or arrhythmias. It belongs to a class of drugs called antiarrhythmics. Specifically, it is classified as a class 1 antiarrhythmic agent. These medications work by blocking certain sodium channels in the heart, which helps to regulate and stabilize abnormal heart rhythms. It works by affecting the electric signals in the heart to help restore normal rhythms. Let's now discuss the pharmacokinetics of propafenol. Let's start with its absorption. प्रोपाफेनॉल को हम मोस्टली ओरली एडमिनिस्टर करते हैं. इसकी मेनली हमारे पास एब्जॉर्प्शन होती है जीआईटी से और सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है. इस वजह से प्रोपाफेनॉल विल अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होगी. अराउंड तकरीबन 40 to 50% बायो अवेलेबिलिटी रहेगी इसकी. डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर एब्जॉर्प्शन प्रोपाफेनॉल इज एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी. इट हैज रिलेटिवली लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, indicating extensive tissue distributions beyond vascular compartments. Propafenol is highly protein bound, about 95%, primarily to alpha-1 acid glycoprotein and albumin. Let's now discuss the metabolism of propafenol. Propafenol की mainly हमारे पास metabolism होगी hepatic metabolism, यानी liver में इसकी metabolism होगी, और जो enzyme responsible है इसकी metabolism के लिए वो है CYP450 enzyme system. Specifically इनमें से हमारे पास CYP2D6 और CYP3A4 मेनली मेटाबोलाइज करते हैं प्रोपाफेनॉल को. अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद प्रोपाफेनॉल जो मेन मेटाबोलाइट बनाएगा वो है 5-हाइड्रोक्सी प्रोपाफेनॉल, N डिसल्काइल प्रोपाफेनॉल और 4-हाइड्रोक्सी प्रोपाफेनॉल. अब हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन. आफ्टर द मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास मेटाबोलाइट्स होते हैं प्रोपाफेनॉल के वो मेनली एक्सक्रीट होंगे वाया यूरिन, और प्रोपाफेनॉल की हमारे पास हाफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 2 to 10 आवर्स है. लेट्स नाउ डिस्कस द फार्माकोडायनामिक ऑफ प्रोपाफेनॉल. प्रोपाफेनॉल बेसिकली क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग है जो कि अपना इफेक्ट सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके
शो करेगा, यानी ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्ट करेगा सोडियम चैनल्स को इंटर होने में कार्डियक सेल्स के अंदर। लेट्स नाउ डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोपोफेनॉन। जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि प्रोपोफेनॉन सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो प्रोपोफेनॉन ब्लॉक करेगा जो कार्डियक मायोसाइट्स या कार्डियक टिश्यूज में जो सोडियम चैनल्स है उनको ब्लॉक करेगा। ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं ये क्रूशियल होते हैं इनिशिएशन एंड प्रोपगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक टिश्यूज। लेकिन जब हम इन्हें ब्लॉक करेंगे सोडियम चैनल्स को, तब हमारे पास स्लो डीपोलराइजेशन होगी, क्योंकि सोडियम की इन्फ्लक्स स्लो होगी, इसलिए हमारे पास डीपोलराइजेशन स्लो होगी, और उसकी वजह से जो एक्साइटेबिलिटी होती है कार्डियक सेल्स की वो भी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट रिदम्स नॉर्मल हो जाएंगे। अब हम मजीद इस डायग्राम से सीखेंगे कि किस तरह प्रोपोफेनॉन सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है। इन सोडियम चैनल्स का इनिशियल फंक्शन ब्लॉक होने से पहले इनका फंक्शन क्या होता है, अगर हम इन्हें ब्लॉक करेंगे तो किस तरह का इफेक्ट हमारे कार्डियक सेल्स पे होगा। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानने के लिए जरूरी है कि ये सोडियम चैनल्स होते कहाँ पे है इन द हार्ट और इनकी फंक्शन क्या होती है। अगर हम यहाँ पे हार्ट की ये डायग्राम देख ले तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे नोड बना हुआ है जो कि हम जिसे नेचुरल पेस मेकर भी कहते हैं। तो हमारे पास मेनली सोडियम चैनल्स होते हैं ऐसे नोड पे, और जो इसके अलावा जो दीगर भी हमारे पास कार्डियक मायोसाइट्स है उनमें हर जगह हमारे पास, जैसे हमने ऑलरेडी कहा कि प्रोपोफेनॉन सोडियम चैनल ब्लॉकर है और ये अपना फंक्शन शो करेगा बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स इन द हार्ट। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सोडियम चैनल हार्ट में होते कहाँ है, इनकी मेन फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन क्या है, और इनको ब्लॉक करने से हमारे पास किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो हार्ट की एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे एसए नोड है। एसए नोड में हमारे पास सोडियम चैनल्स होंगे, और इसके अलावा जो और भी कार्डियक मायोसाइट्स है उनमें हर जगह हमारे पास सोडियम चैनल्स होंगे। तो अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन सोडियम चैनल्स की नॉर्मल फंक्शन क्या होती है। तो कार्डियक जो मसल्स होते हैं, कार्डियक जो टिश्यूज होते हैं, उनमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो इनिशिएट कब होगा, जब हमारे पास सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ देख ले तो यहाँ पे शो है कि जो डीपोलराइजेशन है, जो फर्स्ट फेज है, जो एक्शन पोटेंशियल की इनिशिएशन है, वो हमारे पास कब स्टार्ट होता है, जब सोडियम चैनल्स के ओपन होते हैं और सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स होती है। अब जो कार्डियक हमारे पास मायोसाइट में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या इनिशिएट होता है, वो सबसे पहले तो सोडियम आयंस की वजह से सोडियम आयन की इन्फ्लक्स होगी, तो हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। उसके अलावा उसके बाद रैपिड इन्फ्लक्स होगी कैल्शियम आयंस की, और फिर बाद में रीपोलराइजेशन होगी हमारे पास पोटेशियम आयंस की वजह से। यानी जो सोडियम आयंस है वो इंपॉर्टेंट है इन द इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक टिश्यूज। अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर एसए नोड की बात ले लें, एसए नोड के एग्जाम्पल ले तो एसए नोड में हमारे पास सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अब वो एक्शन पोटेंशियल जैसे जैसे यहाँ पे बंडल ऑफ या परकिंजी फाइबर्स के थ्रू जिस कार्डियक मायोसाइट में पहुंचेगा उसकी में कंट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल हार्ट बीट या हार्ट रिदम पैदा होंगे। अब अगर ज्यादा एक्साइटेशन होगा ज्यादा, अब इसका क्या मतलब है कि जो सोडियम चैनल्स है ये इंपॉर्टेंट होते हैं जो नॉर्मल हमारे पास एक्शन पोटेंशियल होता है उसे इनिशिएट करने में और प्रोपोगेट करने में। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जब हमारे पास अगर ज़्यादा एक्साइट हो सोडियम चैनल्स या ज़्यादा हमारे पास एक्टिविटी शो करे, तब ज़्यादा इन्फ्लक्स होगी सोडियम आयंस की, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास रैपिड डीपोलराइजेशन होगा और प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन होगा। अब इन प्रोलॉन्ग या रैपिड डीपोलराइजेशन जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। तो अब हम इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्मल सोडियम चैनल्स होते हैं उनका काम क्या होता है, अब जब रैपिड इन्फ्लक्स होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, और प्रोपोफेनॉन किस तरह उनको ब्लॉक करके ट्रीट करने के लिए यूज होता है एरिथमियाज या इरेगुलर हार्ट बीट्स को। अब अगर यहाँ देख ले तो हमारे पास ये एक चैनल है सोडियम चैनल जो ओपन है, जिसकी वजह से क्या सोडियम चैनल अंदर आ रहे हैं और पोटेशियम चैनल्स बाहर जा रहे हैं नॉर्मली। ये एक एग्जांपल है हमारे पास क्लोज चैनल की, जहाँ पे क्लोज है जिसकी वजह से सोडियम चैनल अंदर नहीं आ पा रहे और पोटेशियम बाहर नहीं जा पा रहे। अब हमारे पास हमने कहा था कि प्रोपोफेनॉन क्या है, सोडियम चैनल्स ब्लॉकर है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये क्या, ये इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सोडियम आयन अंदर आ रहे इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट में, लेकिन यहाँ पे प्रोपोफेनॉन अटैच हुआ है चैनल्स के ऊपर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, यानी जो सोडियम आयन से वो अंदर नहीं आ पा रहे। हमने पहले कहा था कि अगर सोडियम चैनल ज्यादा नॉर्मली अंदर आएंगे तो नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मल हार्ट रिदम, नॉर्मल हार्ट बीट होंगे। लेकिन अगर ज्यादा इनकी इन्फ्लक्स होगी उसकी वजह से क्या होंगे, डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग होंगी और रैपिड होगी, जिसकी वजह से इरेगुलर बीट्स या इरेगुलर रिदम्स पैदा होंगे। अगर हम यहाँ देखें ईसीजी से, ये नॉर्मल हमारे पास ईसीजी है जहाँ पे हमारे पास डेफिनिट है और डिफाइंड क्या है PQRST वेव से। लेकिन अगर हम दूसरा ईसीजी देखें तो ये हमारे पास शो करता है जो इरेगुलर हार्ट बीट्स या एरिथमिया है उसकी ईसीजी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले देखें तो एट्रियल फ्लटर की एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास शार्प टूथ काइंड ऑफ वेव्स है, और अगर इसके नेक्स्ट वेव देखें तो हमारे पास इरेगुलर इंटरवल है, यानी जो फर्स्ट PQRST वेव और सेकंड जो PQRST है उनके बीच में पहले वाले में जगह कम है और दूसरे में प्रोलॉन्ग से ज़्यादा जगह है।
अगर तीसरा हम देखें तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन की यहाँ पे एग्जाम्पल है, जिसमें हमारे पास क्या है, फ्लैट पी वेव बने हुए या फिब्रिलेटरी वेव्स बने हुए हैं। अब हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके पढ़ेंगे। हमने इसके मैकेनिज्म में पढ़ा कि सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है, जब इसकी वजह से क्या होता है, जो कार्डियक सेल्स की जो इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होता है। अगर हम जो इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी है उसे रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, जो कार्डियक रिदम होगा वो स्टेबलाइज होगा और नॉर्मल में आएगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, जो रिफ्लेक्टिव पीरियड से उन्हें प्रोलॉन्ग करेगा, जिससे हमारे जो इरेगुलर हार्ट बीट से उनकी अकरेंस की चांसेस है वो क्या होंगे, कम होंगे। अब बाकी अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट देख ले तो जो कॉमन या जनरल साइड इफेक्ट है वो डिजीनेस, फटीग, नोजिया और विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। लेकिन समटाइम मोस्ट सीवियर केसेस में हमारे पास जो एरिथमियास है वो एग्जेजरेट हो सकते हैं, वो एक्सकेवेट हो सकते हैं, हार्ट फेलियर होने की चांसेस है और लंग प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा बाज़ पेशेंट्स में या बाज़ इंडिविजुअल में बाज़ टाइम प्रो एरिथमिया भी हो सकते हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग एरिथमिया से वो वर्सन हो सकते हैं, वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं, या ये नए एरिथमियाज भी इंड्यूस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल और उसके इंटरनल सिस्टम, उनके मैकेनिज्म्स के हिसाब से। नाउ लेट्स डिस्कस द टॉक्सिसिटी। जो सिम्टम्स होते हैं प्रोपेफेनॉल ओवरडोज के वो यूजुअली सीवियर होते हैं विद इन द फर्स्ट 3 आवर्स। और वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कन्वर्जेंस हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है और स्लीपनेस हमारे साथ इंड्यूस कर सकता है। आप डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल यूज। जैसे हमने कहा कि प्रोपाफिनोन यूज़ होता है इरेगुलर हार्ट बीट्स को ट्रीट करने के लिए और हार्ट रिदम्स जो होते हैं उन्हें नॉर्मलाइज करने के लिए। तो इसलिए हम प्रोपाफिनोन को यूज़ कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, एट्रियल फ्लटर के लिए। और इसके अलावा हम लेस कॉमनली, आज तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन सम टाइम इसे वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंट्राइंडिकेशंस, यानी किस सिचुएशन में हमें प्रोपाफिनोन नहीं देना चाहिए। तो इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू प्रोपाफिनोन और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन, तब हम प्रोपाफिनोन नहीं दे सकते। अगर if someone has sinus node dysfunction including sinus bradycardia, sick sinus syndrome and AV block without a pacemaker, significant structural heart disease such as severe left ventricular dysfunction भी अगर है तो हम तब भी नहीं दे सकते। इसके अलावा if someone has history of myocardial infarction within the last 2 years। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस, यानी किस टाइम पे हमें देना चाहिए। तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए दे सकते हैं, एट्रियल फ्लैटिक के लिए दे सकते हैं, इसके अलावा पैराजोक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया के लिए भी हम दे सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ड्रग इंटरेक्शंस प्रोपाफिनोन के। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ड्रग देख दे तो एसिटामानोफिन, जैसे कमल हम पैरासिटामोल केलपोल नाम से अवेलेबल है मार्केट में, प्रोपाफिनोन डिक्रीज करेगा एसिटामानोफिन की मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इंटरेक्शन ऑफ प्रोपाफिनोन एंड एसिनोफिनिक। एसिनोफिनिक इज एन एसिड एंड इट इज डिक्लोफिनिक एनालॉग। एसिनोफिनिक अगर हम प्रोपाफिनोन के साथ दे देंगे तो वो जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी होती है प्रोपाफिनोन को, उन्हें डिक्रीज कर सकता है। अगला हम जो ड्रग डिस्कस करने वाले हैं वो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर है, जिनके कॉमन एग्जांपल हमारे पास एम्लोडिपिन है, निपिडिपिन वगैरह होते हैं जो मार्केट में कॉमनली अवेलेबल और यूज़ होते हैं। अगर हम एम्लोडिपिन या कोई भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रोपाफिनोन के साथ दे दें तो वो एरिथमोजेनिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी जो अंडरलाइंग एरिथमियास है या वो उनको हमारे पास इंक्रीज एग्जर्वेट करेंगे और न्यू एरिथमियास भी इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपाफिनोन और डायजोक्सिन। डायजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, जिनके कॉमन यूज एग्जांपल स्टाइल डायजोक्सिन है। Propafenone can increase the level of dioxin in the blood, which may lead to toxicity symptoms like nausea, vomiting, and arrhythmias. Next drug जो हमारे पास है वो अल्बेंडाजोल है। इट इज़ एन एंटी हेलमेंटिक एंड एंटी प्रोटोजोल ड्रग। प्रोपाफिनोन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी अगर हम इसे एल्बेंडाजोल के साथ कंबाइन करके यूज़ करें। अगला हमारे पास जो ड्रग है वो एजिथ्रोमाइसिन है। अगर हम प्रोपाफिनोन को एजिथ्रोमाइसिन के साथ दे दें तो क्यूटीसी जो इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल है, और ये अगर हम प्रोपाफिनोन और एजिथ्रोमाइसिन को एक साथ देंगे तो ये प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल है। नेक्स्ट इंटरेक्शन जो हम देख रहे हैं वो बीटा ब्लॉकर्स और प्रोपाफिनोन की है। बीटा ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव है और प्रोपाफिनोन की भी एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटीज है, इसलिए अगर हम दोनों को साथ यूज करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया यानी स्लो हार्ट रेट के रिस्क है। फॉर एग्जांपल अगर हम मेटोप्रोलोल जो एक बीटा ब्लॉकर है उसको अगर हम प्रोपाफिनोन के साथ यूज करें तो प्रोपाफिनोन इसकी मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को। अगर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसकी कम होगी तो ज़्यादा लेवल में हमारे ब्लड में मौजूद रहेगा मेटोप्रोलोल, जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटीज़ की ज़्यादा होगी और स्लो हार्ट रेट्स होंगे। In summary, we have explored the multifaceted literature on propafenone, delving into its clinical applications, mechanism of action, its pharmacokinetics, etc. We hope this discussion has provided valuable insight and a deeper understanding of this important medication. As we draw our discussion to a close, I would like to express our heartfelt gratitude to Professor Dr. Ghulam Zirani for his invaluable guidance and supervision throughout this endeavor. His expertise has been instrumental in shaping our understanding of propafenone literature.
We extend our sincerest thanks to him for his unwavering support. And to all our viewers, thank you for joining us on this journey of exploration and discovery. Until next time, stay curious and keep learning.